Hello, listening friends. नमस्कार श्रोता मित्रों, We are always glad that you tuned in to listen to this program हमें हमेशा खुशी होती है कि आप इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं, because we have been talking about something very, very important. क्योंकि हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करते आ रहे हैं। It is about knowing your enemy. ये आपके शत्रु को जानने के विषय में है। And I want to begin by making a very, very important statement. और मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा के साथ शुरू करना चाहता हूँ। I'm going to repeat it twice. मैं इसे 2 बार दोहराऊंगा। Do you know that it is easier to believe a lie that you have heard 1,000 times क्या आप जानते हैं कि उस झूठ पर विश्वास करना आसान है जिसे आपने 1000 बार सुना है, than the truth which you only hear it once or on occasions? बजाय उस सच के जिसे आप एक बार या कभी कभार ही सुनते हैं? Let me repeat this. मैं इसे दोहराता हूँ। Do you know that it is easier to believe a lie that you have heard 1,000 times क्या आप जानते हैं कि उस झूठ पर विश्वास करना आसान है जिसे आपने 1000 बार सुना है, than the truth which you expose to only occasionally? बजाय उस सत्य के जिसके सामने आप कभी कभार ही आते हैं? And that is why the media in the whole world system continuously conspiring to make the believers believe one lie after another. इसी कारण पत्रकारिता और समस्त विश्व प्रणाली लगातार षड्यंत्र कर रही है कि वो विश्वासियों को एक के बाद एक झूठ पर विश्वास करवाते जाएं। I would dare say most of us, including myself, have fallen into these lies one time or another. मैं निर्भयता से कहता हूं कि हम में से अधिकतर, मेरे सहित, एक या किसी दूसरे समय पर उस झूठ में अवश्य गिरे हैं। All of that because we do not understand the nature and the character of our enemy. ये सब इसलिए हुआ क्योंकि हम अपने शत्रु का आचरण और चरित्र नहीं समझते। He is a deceiver from the beginning. वो शुरू से ही धोखेबाज है। You know, the Pharisees rejected Jesus. आप जानते हैं कि फरीसियों ने यीशु का इनकार किया, And Jesus is the truth, और यीशु ही सत्य है, the whole truth, संपूर्ण सत्य, and nothing but the truth. और कुछ नहीं परंतु सत्य। He is the full embodiment of the truth of God. वो परमेश्वर के सत्य का प्रत्यक्ष रूप है, And the Pharisees rejected him. और फरीसियों ने उसका इनकार किया। Listen to what Jesus said to them in John 8:44. सुनिए यूहन्ना 8 अध्याय के 44 पद में यीशु ने उनसे क्या कहा। You are of your father the devil, तुम अपने पिता शैतान से हो, and your will is to do your father's desire. और तुम्हारी इच्छा अपने पिता की मर्जी पूरा करने की है। Someone would say, well, just wait a minute. कोई शायद कहे, खैर 1 मिनट रुकिए। These were the Jewish leaders at the time. उस समय ये यहूदी अगुवे थे। How come Jesus said this to them? कैसे यीशु ने उनसे ऐसा कहा? Well, listen again to what Jesus said. फिर से सुनिए जो यीशु ने कहा। He said that Satan was a murderer from the beginning, उसने कहा कि शैतान शुरू से ही खूनी है, and he has nothing to do with the truth, और सत्य के साथ उसका कुछ लेना देना नहीं है, because there is no truth in him. क्योंकि उसमें बिल्कुल सत्य नहीं है। And when he lies, he speaks according to his nature, और जब वो झूठ बोलता है तो अपने चरित्र के अनुसार बोलता है, for he is a liar and the father of liars. क्योंकि वो झूठा और झूठों का पिता है। And these religious leaders at the time of Jesus, when they did not believe in him, they believed the lie. और यीशु के समय इन धार्मिक अगुओं ने जब उस पर विश्वास नहीं किया तो उन्होंने झूठ पर विश्वास किया। Satan perhaps senses that the time is getting close for his deception to be exposed. शैतान शायद समझ रहा है कि उसके छल के प्रकट होने का समय निकट आ रहा है, And he knows that he will soon be thrown into the lake of fire. और वो जानता है कि वो जल्द ही आग की झील में फेंका जाने वाला है। And the nearer the time draws, the more he turns on the heat of deception. और जितना समय पास आ रहा है उतना ही वो छल का अधिक प्रयोग कर रहा है। Even among those who call themselves Christian. यहाँ तक कि उनमें जो अपने आप को मसीही कहते हैं, Even among those who believe in Jesus Christ as Lord and Savior. यहाँ तक कि उनमें भी जो यीशु मसीह पर प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करते हैं। Many Christians are falling in his deception. बहुत सारे मसीही उसके छल में फंस रहे हैं। No wonder the Apostle Paul tells Timothy,
कोई आश्चर्य नहीं है कि प्रेरित पौलुस तिमोथी से कहता है in 1 Timothy 4:1. पहला तिमोथियस 4:1 में, Listen carefully, I'm going to read it to you. ध्यानपूर्वक सुनिए, मैं इसे आपके लिए पढ़ने जा रहा हूँ। The Spirit clearly says आत्मा स्पष्ट रूप से कहता है that in the latter times, कि आने वाले समय में some will abandon the faith कई लोग विश्वास से हट जाएंगे and follow deceiving spirits और छल के आत्माओं के पीछे चलने लगेंगे and things taught by demons. और उन बातों के पीछे जो शैतान के दूतों के द्वारा सिखाई जाती हैं। Paul was predicting पौलुस पहले से ही बता रहा था and anticipate और इसकी आशा कर रहा था, what is already happening in our day, जो कि अब हमारे समय में हो ही रहा है, what's already taking place in many communities across the world. जो कि समस्त संसार में बहुत सारे समुदायों में घट रहा है। Satan will always try to dominate the religious realm. शैतान हमेशा धार्मिक राज्यों पर अधिकार करने का प्रयत्न करता है। You know why? आप जानते हैं क्यों? So that he can be in power. ताकि वो सब पर अधिकार कर ले, So that many of those who believe in Jesus Christ be deceived. ताकि उनमें से अधिकतर छले जाएं जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। By the time they discover it, it is too late. और जब तक उन्हें पता चले बहुत देर हो चुकी होती है। Denying the truth of God's word is what Satan wants to achieve. परमेश्वर के वचन के सत्य का इनकार ही है जो शैतान प्राप्त करना चाहता है। I want you to listen carefully. मैं चाहता हूं कि आप बहुत ध्यानपूर्वक सुने। If you think that the devil is going to come into the church door and introduce himself, यदि आप सोचते हैं कि शैतान प्रार्थना भवन के दरवाजे पर आकर अपनी पहचान देने वाला है, or he would say, this church is really not a place for me, या वो कहेगा कि ये कलीसिया असल में मेरा स्थान नहीं है, then you are deceived. तो फिर आप छले गए हैं। Satan has now moved into many churches. शैतान अब बहुत सारी कलीसियाओं में प्रवेश कर चुका है। He has planted his standards to their standards. उसने अपने झंडे उनके झंडों के बराबर लगा दिए हैं। He has placed his falsehood to be their gospel. उसने अपना झूठ उनके सुसमाचार के रूप में स्थापित कर दिया है। He has placed his emissaries in their leadership. उसने अपने दूत उनके अगुओं में शामिल कर दिए हैं। He has entrenched his doctrine in their own. उसने अपनी शिक्षा उनकी खुद की बनाई हुई शिक्षा में सुरक्षित कर दी है। How does he do that? वो ऐसा कैसे करता है? Very simply. बहुत आसानी से। He mixes a little bit of the truth वो थोड़ा बहुत सत्य मिलाता है with an ocean of deception छल के एक बड़े समंदर में and falsehood. और झूठ के साथ। People go into it by the millions, लोग लाखों की तादाद में इसमें गिरते हैं, not realizing, of course, that they are being deceived. बिल्कुल अनजान कि उनको छला जा रहा है। Satan came to Eve not just out of the blue. शैतान हवा के पास ऐसे ही नीले आकाश से नहीं आया। I am convinced of that. मैं इस बात पर निश्चित हूँ। I am convinced of what I'm going to tell you. मैं विश्वास करता हूँ इस बात पर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, That Satan kept coming to Eve again and again. कि शैतान बार बार हवा के पास आता रहा। Just remember that before the fall, Adam named all the animals. याद रखिए कि गिरावट से पहले आदम ने सब जानवरों को नाम दिए। He named all the reptiles. उसने सब रेंगने वाले जीवों को नाम दिए। They were not frightening and harmful creatures like they are now. उस समय वो हानिकारक और खतरनाक जीव नहीं थे जैसे कि वो अब हैं। After the fall, everything fell apart. गिरावट के बाद सब कुछ बिखर गया। So Satan spoke to Eve repeatedly. तो शैतान हवा से बार बार बात करता रहा। But when finally wanted to get to her, how did he do it? परंतु जब असल में उसे फंसाना चाहा तो उसने ये कैसे किया? There was one animal that was known in the animal kingdom for its prudence, and that's the serpent. वहाँ जानवर राज्य में एक ऐसा जीव था जो अपनी दूरदर्शिता के लिए प्रसिद्ध था और वो है सांप। And that's exact literal translation of the word. और वचन का वास्तविक असल अनुवाद यही है। The serpent was known for being prudent. सांप को दूरदर्शी होने के लिए जाना जाता था। So when Satan spoke to Eve, तो जब शैतान ने हवा से बात की he spoke to her in a form of prudence. तो उसने एक दूरदर्शी होने के रूप में बात की। He spoke to her in a form of wisdom. उसने उससे एक समझदारी रूप में बात की। Every time I read the scripture, it is all brand new to me. हर बार जब मैं इस वचन को पढ़ता हूँ तो ये मेरे लिए बिल्कुल नया होता है। And when I read this time, I discovered something wonderful. और जब मैंने इस बार इसे पढ़ा तो मैंने कुछ बहुत ही अद्भुत बात पाई।
It's in Genesis chapter 3. ये उत्पत्ति 3 अध्याय में है। Eve knew the will of God. हवा परमेश्वर की इच्छा को जानती थी। She knew the command of God. वो परमेश्वर की आज्ञा को जानती थी। She knew the love of God. वो परमेश्वर के प्रेम को जानती थी। She knew fellowship with God. वो परमेश्वर के साथ संगति को जानती थी। Satan got her to debate the issue. शैतान ने उसे फंसा लिया कि वो इस मसले पर वाद विवाद करे। Is what God said really God's word? जो परमेश्वर ने कहा सच में क्या वो परमेश्वर का वचन है? And her sin began when she began to substitute natural reasoning for divine knowledge. और उसका पाप शुरू हुआ जब उसने स्वाभाविक तर्क शक्ति को ईश्वरीय ज्ञान के साथ बदलना शुरू कर दिया। And I testify to you that if you ever do and fall into the trap of Satan, you're in trouble. और मैं आपके सामने इस बात की गवाही देता हूं कि यदि आप कभी भी शैतान के जाल में फंसकर ऐसा करते हैं तो आप समस्या में पड़ चुके हैं। Because when Eve listened to the whisper of Satan, क्योंकि जब हवा ने शैतान की फुसफुसाहट को सुना that was the beginning of the end. तो वो अंत की शुरुआत थी। Satan takes a little bit of the truth शैतान थोड़ा सा सत्य लेता है and mixes it with an ocean of falsehood और उसे झूठ के समंदर के साथ मिलाता है and makes it look good. और इसे अच्छा दिखाई देता हुआ बना देता है। One of the deceptions of Satan today आज शैतान के छलावों में से एक है is to get people focusing on their own needs. कि लोगों को उनकी अपनी आवश्यकताओं पर केंद्रित रखे। They said, look for a church that meets your needs. आप कहते हैं ऐसी कलीसिया ढूंढते हैं जो आपकी आवश्यकताओं को पूर्ण करे। Look for a pastor that meets your needs. ऐसे पादरी को ढूंढते हैं जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ण करे। But you know the truth? परंतु आप सच्चाई जानते हैं Nobody can meet your needs. कोई भी आपकी आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं कर सकता। Only Jesus Christ can meet all your needs. केवल यीशु मसीह ही आपकी सब आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकता है। And Satan knows that. और शैतान ये जानता है। So people go from meeting to meeting, सो लोग सभाओं से सभाओं में जाते रहते हैं, church to church. एक प्रार्थना भवन से दूसरे प्रार्थना भवन। Who is the person that gets deceived at the end? अंत में कौन व्यक्ति है जो छला जाता है? The person who listened to Satan's whisper. वो व्यक्ति जो शैतान की फुसफुसाहट को सुनता है। I want to tell you another deception. मैं आपको एक और छल के विषय में बताना चाहता हूँ। He gets you to focus on yourself. वो आपका ध्यान आप पर केंद्रित करवाता है। What I am going to benefit from going to church. प्रार्थना भवन जाकर मुझे क्या लाभ होने वाला है? What I am going to benefit from going to meetings. सभाओं में जाने से मुझे क्या लाभ होने वाला है? But going to church is not for what you can get out of it. परंतु प्रार्थना भवन जाना इसलिए नहीं है कि आपको इससे क्या प्राप्त होता है। Going to church is to worship the living God प्रार्थना भवन जाने का अर्थ है जीवते परमेश्वर की उपासना करना and to honor Him और उसका आदर करना and to glorify Him. और उसकी महिमा करना। And you say, God, you are the creator of the world. और आप कहते हैं परमेश्वर आप सृष्टिकर्ता हैं। And when you do that, God meets your needs. और जब आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर आपकी आवश्यकताओं को पूर्ण करता है। But look how Satan twists this. परंतु देखिए कि शैतान इसे कैसे मोड़ता है। His deception is that you've got to meet your need first. उसका छल है कि सबसे पहले आपको अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। But you cannot meet your needs until you have worshipped the living God. परंतु आप तब तक अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते जब तक आप जीवते परमेश्वर की उपासना नहीं करते। In fact, the places that are built around meeting needs, बल्कि जो स्थान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्थापित किए जाते हैं, it loses its vision within a matter of few years. कुछ ही वर्षों में वो अपना दर्शन खो देते हैं। Eve, listening to the whisper of Satan, हवा शैतान की फुसफुसाहट को सुन रही थी। when she began questioning the word of God, जब उसने परमेश्वर के वचन पर प्रश्न उठाना शुरू किया, at that point she began to develop a cynical attitude by doubting the word of God. और उसी क्षण से उसने परमेश्वर के वचन पर संदेह करके निंदापूर्ण बर्ताव विकसित करना शुरू कर दिया। Satan's number one endeavor and goal is to reproduce himself in others. शैतान का नंबर 1 प्रयत्न और लक्ष्य है कि वो दूसरों में अपने आप का पुनरुत्पादन करे। But that's exactly what God wants to do. परंतु too. बिल्कुल यही परमेश्वर भी करना चाहता है। You have two competing powers here. यहाँ आपके पास 2 शक्तियां आमने सामने हैं।
God wants you and me to conform to the image of His beloved Son. परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उसके प्रिय पुत्र के प्रतिरूप को निश्चित करें। Every day of our lives, we are to conform to the image of the Lord Jesus Christ. हमारे जीवनों के प्रतिदिन हमें प्रभु यीशु मसीह के प्रतिरूप को निश्चित करना है। Every time Satan succeeds in reproducing himself in you, he does it through a lie. जब भी शैतान स्वयं को आप में पैदा करने में सफल होता है तो वो ये झूठ के द्वारा करता है। But when God succeeds in reproducing himself in you, he does it through the truth. परंतु जब परमेश्वर स्वयं को आप में पुनरुत्पादित करने में सफल होता है तो वो ये सत्य के द्वारा करता है। Throughout the New Testament, there are many exhortations regarding the use of the tongue. पूरे नए नियम में जुबान के प्रयोग के लिए बहुत सारे उपदेश हैं। Why? क्यों? Because the tongue is the instrument through which we so often give place to the devil. क्योंकि जुबान ही वो साधन है जिसके द्वारा हम अधिकतर शैतान को अवसर देते हैं। If he's going to succeed, that's how he'll begin. यदि उसे सफल होना है तो वो ऐसे ही शुरू करेगा। Now, as I'm getting ready to conclude, listen carefully. अब जबकि मैं समाप्त करने पर हूँ, कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। Remember the question that I asked you in the beginning of the last message? आपको वो प्रश्न याद है जो मैंने पिछले संदेश के शुरू में आपसे पूछा था? I told you to keep thinking about this throughout this message and the next. मैंने आपसे कहा था कि इस और अगले संदेश के दौरान आप इस विषय में सोचते रहें। I told you to ask yourself, whom do I resemble? मैंने आपसे कहा था कि अपने आप से पूछिए कि आप किसका समरूप हैं? Whom do I model? कौन मेरा आदर्श है? Whom do I imitate? मैं किसकी नकल करता हूँ? Do you imitate the enemy of your soul or the Lord of your life? क्या आप अपने आत्मा के शत्रु की नकल करते हैं या अपने जीवन के प्रभु की? What is your answer? आपका उत्तर क्या है? You must be honest with yourself. आपको खुद से ईमानदार होना होगा। And if your answer is that you are imitating the enemy of your soul, you need to repent tonight. और यदि आपका उत्तर यह है कि आप अपनी जान के दुश्मन की नकल करते हैं तो आज रात आपको पश्चाताप की आवश्यकता है। The Lord is welcoming you tonight, प्रभु आज रात आपका अभिनंदन कर रहा है, saying, come to me. कहते हुए कि मेरे पास आओ। And until we meet again, I wish you God's richest blessing. और हमारे दोबारा मिलने तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना करता हूँ।